Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is conditions for anticipatory bail under SC/ST Act. Why news? Recently, the Supreme Court in X versus Y addressed the issue of anticipatory bail under the SC/ST Act, also gave significant clarity on how anticipatory bail applications should be evaluated in cases involving caste-based offences. Background of the case: the accused assaulted the complainant with an iron rod and threatened to set his house on fire. The complainant's mother and aunt also faced similar intimidation and were subjected to the same casteist slur. The use of the term Mangto clearly aimed to humiliate the complainant due to his SC identity. The caste connection was evident in the abusive language and behavior of the accused, who targeted the complainant for not voting for a specific candidate, Bahubali, in the assembly elections as desired by the accused. What were the court observations? Chief Justice B.R. Gavai led the bench alongside Justices K. Vinod Chandran and N.V. Anjaria, observed that anticipatory bail is impermissible unless a prima facie case under Section 3 of the SC/ST Act is not made out. The court stressed that it is not permissible to enter into the evidentiary realm while determining whether a prima facie case exists, and court must rely solely on the allegations in the FIR. The judges clarified that anticipatory bail could only be granted if the accusations lacked merit at the first blush and prima facie reading of the FIR. Provisions involved were: first, Section 3 of the SC/ST Act, which deals with the offences and penalties for caste-based atrocities. It criminalizes acts of humiliation, assault, and threats against members of SCs and STs, particularly using caste-based derogatory language. Second, Section 438 of the Criminal Procedure Code, which deals with anticipatory bail and allows an individual to seek bail in anticipation of arrest. However, it is subject to conditions, especially if no prima facie case exists under the relevant provisions of law such as the SC/ST Act. It's the time for practice question. Under what condition is anticipatory bail permissible under the SC/ST Act? Option A, if the offence is minor. Option B, if the accusations do not establish a prima facie case under Section 3. Option 3, if the accused has no criminal background. And option D, if the complainant withdraws the case. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत की शर्तें। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में X बनाम Y मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत के मुद्दे पर विचार किया और यह भी महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की कि जाति आधारित अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत के आवेदनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। आरोपी ने शिकायतकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया और उसके घर को आग लगाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता की मां और मौसी को भी इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा और उन्हें भी वही जाति सूचक गाली दी गई। मंगतो शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को उसकी अनुसूचित जाति पहचान के आधार पर अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया। जातिगत संबंध उस गाली गलौज और आरोपी के व्यवहार से स्पष्ट था, जिसने शिकायतकर्ता को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में आरोपी की इच्छा अनुसार विशेष प्रत्याशी बाहुबली को वोट नहीं दिया था। आइए अब नजर डालते हैं न्यायालय के अवलोकन पर। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति K. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति N.V. अंजारिया शामिल थे, ने यह टिप्पणी की कि यदि SC/ST अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अग्रिम जमानत देना अनुमेय नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह निर्धारित करते समय कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं, साक्ष्य संबंधी क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है और न्यायालयों को केवल FIR में लगाए गए आरोपों पर ही भरोसा करना चाहिए। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब आरोप पहली नजर में या FIR के प्रारंभिक अध्ययन से ही आधारहीन प्रतीत हों। आइए अब नजर डालते हैं संबंधित प्रावधानों पर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 यह धारा जाति आधारित अत्याचारों से संबंधित अपराधों और उनके दंडात्मक प्रावधानों से जुड़ी है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमान, हमला और धमकी जैसे कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है, विशेषकर जाति सूचक अपमानजनक भाषा के प्रयोग को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 यह धारा अग्रिम जमानत से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका होने पर पहले से जमानत की मांग कर सकता है।
हालांकि यह कुछ शर्तों के अधीन होती है, विशेष रूप से तब जब प्रासंगिक कानूनों जैसे कि SC/ST अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला न बनता हो। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। SC/ST अधिनियम के अंतर्गत किन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत अनुमेय है? विकल्प ए, यदि अपराध मामूली हो। विकल्प बी, यदि लगाए गए आरोप धारा 3 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न करें। विकल्प सी, यदि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। या विकल्प डी, यदि शिकायतकर्ता मामला वापस ले ले। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।